Good morning, students. Today we are going to learn about private health facilities. Okay. In previous period, we learn about public health service. Okay. And today we are going to learn about private health facilities. These are the private health facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. बहुत सारी प्राइवेट फैसिलिटीज हमारे कंट्रीज में अवेलेबल है. A large number of doctors run their own private clinics. Okay, they work in the government hospital also. Okay, but they own their private hospital also. Okay, private clinic भी. In the rural areas, one finds registered medical practitioners, that is called RMPs. That is called registered medical practitioners. Okay. Urban areas have a large number of doctors. Many of them providing specialized service. सिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं एंड दे प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस. कोई हार्ट का स्पेशल होता है, ठीक है. सो दीज आर स्पेशल डॉक्टर्स एंड दीज डॉक्टर्स प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विस. ओके, सो देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ऑन. तो उनके पास में हॉस्पिटल्स है और नर्सिंग होम्स है एंड ऑल दीज आर प्राइवेटली ऑन. ओके, सो which is operated and owned by the private, that is called private hospitals. Okay, and which is operated and owned by the government, that is government hospital. Okay, so that is the difference. There are many laboratories that test and offer special facilities such as X-ray, okay, then ultrasound also. So these are facilities available in private hospital. जिन डॉक्टर्स के बहुत बड़े बड़े क्लिनिक्स होते हैं तो उन डॉक्टर्स के पास में उनके क्लिनिक में ये सारे फैसिलिटी स्पेशल फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं. ओके, सो देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. और उन हॉस्पिटल के पास में शॉप्स होते हैं, फार्मेसी, और वहां से हमें मेडिसिन बाय करना पड़ता है. Okay, so there are also shops also available where we have to buy medicine. As the name suggested, that is private health facilities are not owned or controlled by the government. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में. It is not owned and controlled by the government. Unlike the public health service, it is owned and operated and also under control of the government. But these private health facilities, it is not owned or controlled by the government, unlike the public health service. In private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. जो भी वो टेस्ट करेंगे उनके लिए उनको लॉट ऑफ मनी पे करना पड़ता है. ठीक है, जितने महंगे हॉस्पिटल में जाओगे उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा. Today, the presence of private facilities can be seen all around. चारों तरफ देखिए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे दिखेंगे. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicine. कुछ हॉस्पिटल्स है वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग भी करते हैं. Medical shops are found in every corner of the country. आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल शॉप जो है हर जगह पे फैले हुए हैं. Every corner of the country there are medical shops are available. ठीक है, so it is about private health facilities. ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपने देखा. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहां पर आपको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी, बट in private hospital there all types of facilities are available, but you have to pay that. Okay, so it is about private hospital.
नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अब हम देखेंगे कि इसमें इक्वालिटी है क्या, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, व्हाट इज द रिलेशन विद द हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। एकदम सिंपल सी बात है कि इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट, अगर हमने कंपेयर किया तो इनमें इक्वालिटी है क्या, इक्वालिटी नहीं हो सकती, ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा कॉस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ओके। सो इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, ये एक क्वेश्चन है, इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. Public services increase नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट जो है वो सर्विस इंक्रीज हो रही है। What is then available to people are mainly private service. These are concentrated in urban areas. Okay, the cost of this सर्विस आल्सो रेदर हाई। तो ये जो अर्बन एरियाज में है तो उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। वी कांट अफोर्ड, अब पुअर पीपल कांट अफोर्ड दिस हॉस्पिटल्स, ओके। सो यू नो दैट पुअर पीपल कांट अफोर्ड दिस हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे हैं, okay, many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. उनके घर में कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उनको दूसरों के पास से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं। So they can't afford these expensive medical facilities, okay. Some private services encourage incorrect practices to earn more. कुछ जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनकरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। अगर आपको सस्ती दवाई से अगर आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको सस्ती दवाइयां नहीं लिख के देंगे, जेनेरिक मेडिसिन, ओके, वो आपको नहीं लिख के देंगे, वो आपको महंगी वाली दवाइयां ही लिख के देंगे। For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections or saline when simple medication may suffice. अगर simple medication simple medication अगर sufficient है, इसके बावजूद भी वो क्या करेंगे, आपको हाई कॉस्ट के जो मतलब दवाइयां हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उनमें उनको प्रॉफिट मिलता है। इनफैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. 20% of the population, तो ओनली 20% लोग जो है वो ये दवाई का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। जब भी कोई किसी के घर में बीमार पड़ता है तो उनको बहुत समस्या होती है। एक गरीब के घर में अगर कोई बीमार होता है और अगर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाए और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो इट कॉजेस हार्डशिप, उनको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their profession to pay for the expenses. कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उनको पे करने के लिए उनको किसी से उधार मांगना पड़ता है या कुछ चीजें बेचनी पड़ती है, because they can't afford this expensive medical facility, expensive medicine also, okay, and so that they have to borrow from someone or they have to sell their properties, उनको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है because they can't afford. So for those who are poor, every illness in the family, okay, in their family
एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। उनके घर में अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस उनके लिए होता है। ओके, व्हाट इज द वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, और ये अगेन एंड अगेन होता है किसी के घर में। देखिए बीमारी तो हर मतलब हमेशा ही आती रहती है, तो जब भी किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप होगी, उनको किसी से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, या अपना घर बेचना पड़ेगा, या कोई भी चीजें उनको बेचना पड़ेगा। गोल्ड है तो वो कुछ ना कुछ उनको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वेरी प्रॉब्लम, दिस इज द वेरी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। गरीब लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है। ओके, व्हाट इज द वर्स इज दैट दिस सिचुएशन लीड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, ये हमेशा होती रहती है। ओके, एंड दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश। पहले तो वो अंडर नरिश होते हैं, पहले गरीब है, ठीक है ना, और जो लोग गरीब होते हैं वो अंडर नरिश भी होते हैं, कुपोषण होता है, मतलब खाने को उनकी समस्या होती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन दोज डेज, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। So these families, okay, which are very poor and they are undernourished also. So these families are not eating as much as they should. उनको जितना खाना चाहिए, जितना उनके शरीर के लिए चाहिए, उतना वो नहीं खा पाते. Okay, because of they are poor and they could not eat. Okay, as much as they needed for their body. They are not provide basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. ये सब चीजें उनको नहीं मिल पाती। ड्रिंकिंग, उनको पानी का शुद्ध पानी जो है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, ठीक है, और क्लीन सराउंडिंग नहीं मिल पाता। आप देखिए स्लम एरिया में जाके देखिए, आजू बाजू कितनी गंदगी है, पानी भी वहाँ का खराब है, वहाँ जो गरीब लोग हैं, भीख भीख मांगने वाले लोग को तो खाना ठीक से खाना भी नहीं मिलता। सो दे आर पुअर, दे आर अंडर नरिश्ड, और ऐसे समय में अगर वो फिर से बीमार पड़े तो पूरा जितना भी घर में बैलेंस है सब चला जाएगा। ओके, द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। तो बीमारी के लिए खर्चा करना मतलब उनकी जो कंडीशन है और भी डाउन हो जाएगी। ओके, सो दिस एक्सपेंसेस जो खर्चा है ऑन द इलनेस, इट मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, बहुत ही डाउन, बहुत ही गंभीर हालत उनकी बन जाती है। समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वुमेन, फॉर एग्जाम्पल, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। Why? Because women's health concern are considered to be the less important than the health of the men in the family. हमारे फैमिली में महिलाओं की जो हेल्थ है उसकी ज्यादा फिक्र नहीं की जाती है। It is considered very less important. Okay, when we compare with the men. Okay, so it is considered to be less important than the health of men in the family. Mainly tribal areas have few health centers and they do not run properly. So even private health service, this is also not available. तो ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे खेड़े गाँव है। सो व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट कैन बी डन, इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।